हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे प्रखर और ईशान की कॉन्वर्सेशन पार्ट 5। हमने पार्ट 1 2 3 4 ऑलरेडी चेक कर लिए। दिस विल बी द पार्ट 5। लेट्स जंप टू द वीडियो। To talk. Jugnu, who I lived with for many years, complete opposite of Perry, crazy idiot. Very little reason to talk. But Alex, who was not my roommate, lived somewhere else, we do some writing work together. We're writing my next book together. So as long as you have a project with somebody, there is reason to interact. You change the games over which you interact. When you were a kid, it's cricket or football. Then you grow up a little older, it's probably girls or it's probably partying or it's one of those things. Then you grow a little older. Some people have a poker phase because, you start making money and you want to do something with money. So you start playing poker. That's quite common in tier 1 cities. We had a poker phase. Then it's business. Then it's projects. And that's what I tell my friends. Let's do something together so there's a reason to meet. Otherwise छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे. फिर बस याद करोगे क्या दिन थे यार, क्या दिन थे. फोटोज देख के भेजते रहते हैं यार, हम इतने जवान थे. मैं सच में सोचता हूँ कितना वियर्ड होगा when we'll be like 60, 70, we'll look back, we'll have crystal clear photos and videos of how we were at 20. एक गाना है ओल्ड फ्रेंड्स करके, साइमन एंड गारफंकल का. तो मेरा बचपन का जो सबसे पुराना दोस्त है ना, आई बीन फ्रेंड्स विद हिम सिंस आई वाज 1. तो हम 27 साल से दोस्त हैं. वो मेरे बिल्कुल घर के सामने रहता है. वी आर द सेम एज. Our birthdays are 1 month apart. We always did everything together. ठीक है? And he's a super high achiever. He won National Fresh Face, guitarist, musician है, बहुत good looking, right? Runs a company that's worth more crores than any of us can count. Like all this good shit, right? And then I have my small little, क्या बोलते हैं उसे, खिलौनों की दुकान, right? So, him and I, मैं तो point भी भूल गया मैं क्या कह रहा था, but चल मैं पॉइंट ही भूल गया, छोड़. खिलौनों की दुकान पे क्या बात करी थी मैंने शुरू? व्हाट वाज आई बिगिनिंग विद? दोस्तों की बात हो रही थी. हाँ, दोस्तों की कुछ बात हो रही थी, छोड़. बट ऐसा होता है कई बार. हाँ, बात हाँ. करते करते भूल ही गए कहाँ से स्टार्ट किया था. सारी जिंदगी मेरी ये है भाई, तू क्या बात कर रहा है? दिस इज हाफ माई लाइफ. बट या मैन, लाइक हिम एंड आई, वी शेयर द मोस्ट ऑनेस्ट फ्रेंडशिप आई कैन हैव विद एनीवन. लाइक लिटरली ही विल बी लाइक, प्रखर, एक कल परसों ना उसने एक पोस्ट डाला हुआ था, ठीक है? एक स्नीकर की फोटो थी जो दुनिया में 4 ही ऐसे स्नीकर हैं अपेरेंटली. उसने वो खरीदने की कोशिश करी, नहीं मिला. कहता आई एम सो सैड आई डिड नॉट गेट दिस स्नीकर. आई वाज लाइक ब्रो, इफ बाइंग थिंग्स कुड मेक यू हैप्पी, you'd be the happiest person in the world. He's like, bro, you've got to stop being this honest with me. मेरी फैंटेसी में मेरे को जीने दे. You do that to people? I was like, bro, you are 30, you're 28, 29 technically, and you drive a Porsche. You think buying a sneaker is going to make you happy? Stop kidding yourself. हाँ, of course I do that to people. Like people who are close to me, yeah, sure. I'm very annoying to them. Reality check. नहीं, प्रवचन बांटता रहता हूँ साले, वो मेरे को गाली देते रहते हैं. मैंने गूगल पे सर्च किया Gen Z डेटिंग लिंगो, एंड जब मैंने वो सर्च किया तो मेरा दिमाग फट गया मेरा. मेरे को याद भी नहीं यार. I'll read it for you. Right? वो क्या बोलते हैं? हाँ, they were terms: love bombing, benching, cuffing, ghosting, woke fishing, breadcrumbing, situationships, Okay, pocketing, you know what? Let's pink guess. flag, Let's guess beige what flags. Let's guess what this means from the top. Okay, because I'm not sure what they mean, but I have an idea. So what's the first one you said? Love bombing. The first one I said, Is love bombing. love bombing. Love bombing probably means, and tell me if I'm right, throwing excessive love fairly unopportunistically at the other person. Yeah. Right? अच्छा, फिर the second one is नहीं, benching. the point is ये सब हैं, उनके definition मिल जाएंगे लोगों को हाँ. गूगल पे. The नहीं, मैं तो point game is, खेल रहा था, हाँ. do you know the answer to all of them? I Woke could guess. fishing क्या है बताओ? Is pretending to be woke to fish for women or men, huh? Yeah, it's pretty simple. And very common. This is all of Colombia. ये सब. All of the entire university is doing that. हाँ. तो the thing is that people in the comments जब ये सब post आते हैं, they're like, अरे my generation was simpler, there were no such things, it was very simple. Why do you think all of these things are there? Because there was no language, but effectively you were doing the same shit. तू उससे कल मिला है छत पे पतंग टूटने के बहाने, आज तू उसको चिट्ठी में लिख के भेज रहा है, तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा. That's love bombing. ऐसा नहीं है कि कोई न्यू स्ट्रैटेजी इन्वेंट कर दी है जेन जी ने, उसको लैंग्वेज दे दी है, श्योर, बिकॉज they've begun to see patterns that have existed for generations. So stop pretending like they're different. It's just too expressive now. No, they just have language. There's not even expressive.
ठीक है, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ईजी. तू टेक्स्ट कर सकता है, तेरे को चिट्ठी लिख के पापा के या फ़ोन करके. जैसे आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम स्कूल में व्हेन नोकियाज वर अ थिंग, राइट, लाइक तब तक आईफोन भी आए थे. तो मेरे पास मेरी उस स्कूल टाइम गर्लफ्रेंड का घर का नंबर होता था, तो मैं उस पर फ़ोन करता था. कई बार उसके पापा उठा लेते थे तो कार्ड देना पड़ता था, राइट. कुछ लोगों की ये पूरी कॉलेज लाइफ थी जो मेरे से बड़े थे, समझ रहा है. सो ऑल ऑफ दिस हैज़ एग्जिस्टेड फॉर एवर, राइट. तू क्या बात कर रहा है, ये जो फॉल्स सिग्नलिंग होती है, फॉल्स सिग्नलिंग मतलब फॉल्स सिग्नलिंग, कि देखो मैं तो इन्वायरमेंट के प्रति कितना जागरूक हूँ ताकि वो तुम्हें पसंद करे, ये पहले नहीं होता था. लाइक ऑल ऑफ दिस हैज़ फॉर एवर एग्जिस्टेड. All of the dance that leads up to a relationship or intimacy is performance. That is why I said start with the rawest version of yourself. Because Don't perform. उसके बाद सिर्फ बेटर ही हो सकता है ना. उसके बाद तो लाइक तूने लोएस्ट एक्सपेक्टेशन से शुरू किया है ना. बट नहीं, ऐसा नहीं है. यू हैव टू परफॉर्म ब्रो. हम तू और मैं परफॉर्म कर रहे हैं. तू कैमरा हटा दे तो भी परफॉर्म कर रहे होंगे. तू अपने माँ बाप के सामने भी परफॉर्म ही करता है. ईशान होने की एक्टिंग. ईशान नहीं है तू. ईशान तू तब है जब कमरे के दरवाजे बंद है, अंधेरा हो रखा है और तू रात को बैठा हुआ है. शाहरुख खान से पूछा था एक क्वेश्चन किसी ने, हाँ, कि आपको कैसा फील होता है, लाइक लोग आपके पास आते हैं, इतना एवरीवन नोज यू Right. इन इंडिया, एंड ही इज लाइक, I love it. He And- said I love it. Right? नहीं, अच्छा. he obviously he loves it. He said that he loves it, and then he says that I am a myth to the name called Shah Rukh Khan. Yeah. or something like that. He said. He's hostage to it to some degree as Yeah. well, which he might enjoy, right? But yeah, like all this stuff has always existed, bro. पहले क्या बोलते थे, सीन है, अब उसको सिचुएशनशिप बोल देते हैं. सीन चल रहा है, सीन है, टाका भिड़ा है, और लाइक ब्रो हर जनरेशन की अपनी लैंग्वेज होती है. टेक्सटिंग फेज कहते थे, अब उसको सिचुएशनशिप बोल देते हैं ये, राइट. लाइक हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी तक आई लव यू नहीं बोला, लाइक दैट काइंड ऑफ दैट नॉनसेंस इज फॉरएवर एग्जिस्टेड. दिस इज स्कोप. नॉर्मल है ये सब. This is scope. Yeah. This is scope for everybody who's like, oh, this generation is this. You were the same. Wake up. You were literally the same in that time. How long are you? There is some changes that happen. And Yeah. those changes are not individual. Those are macro cultural factors. Exactly. Like the prevalence of internet and what that means we are in a constant performance environment. तू सोच ना, एक टाइम था, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं भीड़ में खड़ा होकर बोल देता हूँ भारत के लोग ऐसे ऐसे हैं. फिर माइक बंद हो जाता है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं बोलूँ भारत के लोग तो साले कुछ नहीं, गवार है. मैं कर सकता हूँ, क्यों किसी को नहीं पता. अब हम कांस्टेंट कैमरा एज में है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एज में. मेरे को परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है कैमरा वो माइक के बाद भी. सो द ओनली डिफरेंस नाउ इज दैट द परफॉर्मेंस इज मोर परमानेंट, right? There is some macro cultural factors that have transformed, macroeconomic factors. India is richer, so people go on more dates. पहले वो बाइक पे ही घुमा लाओ, वो बहुत गेड़ी बड़ी मार बात के होती थी. हाँ, राइट. लाइक पहले मिलने के लिए छत पे आया करते थे, अब मिलने के लिए स्टारबक्स जाते हैं, राइट. देयर सम डिफरेंसेस लाइक दैट, बट individual psychology is coded over millions of years of evolution. These strategies, by all these strategies, all of them, you can literally find biological literature describing it. बायोलॉजी में, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, इन सेक्सुअल सिग्नलिंग के प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स होते हैं. अब मेरे को सारे क्या थोड़े भी याद नहीं होंगे. 2-3-4 साल पहले मेरे को सब पता था, बिकॉज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड. ऑल ऑफ दिस इज नोन फिनोमिना ब्रो. बाइंग एन एक्सपेंसिव कार is called a Zahavian signal, which means I can drop $5 million and still not care. And it comes from, it's almost like मैं एक हाथ पीछे बांध के बोलूँ आजा ईशान, which means I'm so strong I don't need to use two hands. It's a handicap principle. Peacocking is a very common word. I wear clothes that attract attention so that I don't have to go talk to people. All of this shit exists, bro. Yeah, it's not new. And I think people should stop pretending like it's new to make themselves feel better than this generation. You've just gotten old. When Yeah. people say that, na, ye generation, you are admitting to the fact that you're old. Why would you do that? वैसे बुड्ढे हो रहे हो तो मन से तो जवान रह लो मेरे भाई. सो दिल लॉजिकल एक सीरीज है, हाँ. उसमें बंदा होता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कर होता है 4 साल से, और 4 साल के बाद अपनी बंदी से मिलने आता है, क्योंकि उनकी कॉमन फ्रेंड की शादी हो रही होती है. वो वहाँ पे जाकर के मिलता है उससे और बोलता है कि आई वॉन्ट टू नाउ मैरी यू, इज अ प्रॉमिस रिंग दैट आई एम गिविंग टू यू, एंड शी इज रोका, लाइक, जिसे रोका कहते हैं बाय द वे. हाँ. प्रॉमिस रिंग कोई बोले जेनजी प्रॉमिस रिंग बोलता है, रोका कहते हैं तुम्हारे माँ बाप उसे. हाँ. तो वो कर रहा होता है, उसे सरप्राइज करता है, एंड शी इज लाइक कि यार मैंने तो अभी दुनिया देखी नहीं है, तुम तो बढ़िया चल के आ गए SF में, अभी तुम गूगल में काम कर रहे हो, एंड मुझे दुनिया देखनी है. आई जस्ट डोंट वांट टू बी योर वाइफ, आई वांट टू एक्सप्लोर पीपल, आई वांट टू मीट पीपल,
मैं बोलता तो मैं डेट करना किसी और को, तो बोलती है शायद। तो तू 4 साल से क्या कर रही थी? लाइक फॉर रियल। हाँ, एनीवे, हाँ। तो एंड ये रील वायरल है इंस्टाग्राम पे, अच्छा, राइट? हाँ। एंड तो लोग वहाँ पे दे आर लाइक ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, एंड देन दे एंड अप हैविंग लाइक ओपन रिलेशनशिप इन दैट सीरीज, एंड वापस आ जाती है फिर वो बंदी। बट द पॉइंट इज दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल एट माई एज, कि when it comes to marriage they want to explore options. टू अ मोर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, देन दे आर लाइक कि नहीं मेरे को तो ऑप्शंस, हाँ ठीक है, तुम भाई 22 साल के हो यार। फ्री फ्रीडम। हाँ भाई, Yeah. मैं 22 साल का था, मेरे को कोई टिका देता एक के साथ, मैं तो लाइक माई पेरेंट्स समटाइम्स वॉच दिस शिट। हाँ फॉर रियल, मैं 22 साल का जवान गुड लुकिंग 6 फुटिया लौंडा हूँ, क्यों रुकूं भाई मैं? ये तो उम्र है एक्सप्लोर करने की, मैं तो भागूंगा यहाँ वहाँ। तो ये अगेन, दिस इज नॉट लाइक दिस वाज नॉट हैपनिंग 6 years ago, right? Like this was happening forever. Yeah, people could have been more scared back in the day, but really like this is non-new, bro. This is non-new. पता है, वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि बात नहीं करते ना माँ बाप, वरना तुम्हें माँ बाप बता देंगे कि हमारे टाइम में क्या होता था. With a few alterations, this has always existed, one way or the other. So now, for instance, you can say कि भाई दुनिया देखने की चाह बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया देखने के तरीके इतने हो गए हैं. मेरी रील्स पे ही पूरी दुनिया दिख रही है, तो मेरे को देखनी है. पहले लोगों को पता नहीं था लंदन कैसा दिखता है, तो जाना ही नहीं था. बट देवडी का पूरा कॉन्सेप्ट वाज रफली एक्चुअली नहीं देवडी का नहीं, बट लाइक यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस. दिस इज नॉट. So then what do you do then? उससे पूछ, तू पागल है? No one wants to commit. It's like नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ब्रो. लाइक लेट्स बी रियल, ठीक है? You're a guy, you find a catch, you would want to hold her down. You're a girl, you find a catch, you want to hold her down. Now look at, but they don't want to be held, they want to be free. go, then be free. Whenever you're ready, come back, and we'll see where I am at. Like really, the only person complaining is a person with a lack of options, and a person who's fooled themselves into thinking 4 साल से तुम लॉन्ग डिस्टेंस हो, तुम मिले नहीं हो, बेवकूफ़ हो. आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस राइट नाउ. मैं हर 2-3 महीने में मिल पाता हूँ, राइट? लास्ट शी वाज इन इंडिया, अब मैं 10 दिन बाद मैं यूरोप में हूँ, फिर 3-4 महीने बाद मैं अमेरिका जाऊँगा, देन शील बी इन इंडिया, राइट? पर एटलीस्ट ये ना, हम 3-4 महीने में मिल पा रहे हैं, और वो लॉन्ग डिस्टेंस का एक सेंसिबिलिटी है. तुम 4 साल से लॉन्ग डिस्टेंस में बेवकूफ़ हो गए. तुम्हें क्या पता वो इंसान कौन है 4 साल में? तू बेवकूफ़ है, तू उसके 4 साल से बिना मिले. और तू बेवकूफ़ है, तू 4 साल से कर क्या रही है? वॉट इज दिस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी यू नीड, जहाँ तुम टेक्स्ट करके खुश हो? तू जा एक्सप्लोर कर. अब क्या जाग रही है? बड़ी मूर्ख है. बच गया तू तो, लड़का है, मैं तो बोलूंगा बच गया साले. वो हाँ बोल देती डर से, बाद में कहती मेरे को एक्सप्लोर करना है. फिर तू क्या करता? थ्रीसम. लाइक मैं तो कह रहा हूँ, बिल्कुल बाल बाल बचा है तू. समझ रहा है? सो सी ब्रो, देयर इज अ सर्टेन एज टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन. आई विल से दिस हाउएवर, द कमोडिटाइजेशन ऑफ सेक्स इज रियल. Sex has become commodity. And how has that become commodity? Through your dating apps, right? Where earlier sex was a longer fight anywhere in the world, right? India may much longer, rest of the world also longer. Now it's a swipe. So the other person is not their personality, it is the sex appeal in their pictures and the funny one-liners in their bio. We started off by putting our best lives on Instagram. Now we think the lives we live on Instagram is real. We have convinced ourselves, and so the other person is convinced. Larger point I'm trying to drive is sex is commoditized, and people think there is something to sexual liberation which will be lost if they get too old before experiencing it. So I say, do it now. What are you waiting for? Sexual liberation. Yeah, go fucking have as much sex as you want. Go, run, do it. There is costs to this, by the way, both for men and women. How does it affect you? Well, men find it hard to pair bond after that, and so do women. Yeah. It becomes much harder to be monogamous after. And I know this from a lot of second-hand experience. Like a lot of friends who've had trouble being like, अब मैं कैसे commit करूँ? इतने options हैं मेरे पास. Body count issues. Yeah. So like there is a problem to that, and honestly speaking, very soon in your sexual liberation you realize the hollowness of it. Like of course it's fun and you should explore it if you want to, no problem, but you don't need 100 people to realize मैं क्या कर रहा हूँ. Within the first 20 you're like, bro क्या खालीपन है ये, इससे बढ़िया तो किसी को ढूंढ लेता हूँ. Right. तो वो बहुत टाइम नहीं लगता समझने में. 20 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ भाई, लोगों को 3 में ही समझ आ जाता है frankly. Interesting. हाँ, अरे मैं तो कह रहा हूँ लोग नीचे बोलते हैं girls these days. वो भाई वो लड़कियाँ बोलती boys these days, all men are trash. इंस्टाग्राम कमेंट्स की दुनिया रियल नहीं है. वो इंस्टाग्राम की दुनिया से भी घटिया है. सब वर्चू सिग्नल कर रहे हैं. Right. इंस्टाग्राम कमेंट्स इज द बर्थ प्लेस ऑफ वर्चू सिग्नलिंग ऑन द इंटरनेट नाउ. पहले ट्विटर होता था वो कि
कि देखो मैं कितना वोक हूँ। अब इंस्टाग्राम कमेंट्स होता है देखो मैं कितना बेस्ड हूँ। दैट्स लिटरली इट। तू कोई भी रील खोल ले, उसके कमेंट्स उस रील से ज़्यादा फनी होते हैं, राइट। क्योंकि सारे बच्चे सिग्नल कर रहे थे देखो हम तो इससे अलग हैं, ये तो ऐसा है। हाँ, और वो फनी होते हैं, नो डाउट, देयर हिलेरियस। बट इंस्टाग्राम कमेंट, द नीड फॉर यू टू बी लाइक, ये रैंडम वीडियो जो मेरे सामने है इसके कमेंट सेक्शन में जाके एक फनी बात लिख देता हूँ ताकि 3000 लाइक मेरे को भी आए। ओह माय गॉड, यू नीड अ जॉब, लाइक फॉर रियल। ये लोग करते हैं, सोचते हैं बैठ करके कि क्यों करते हैं कमेंट? मेरे को बता दे क्या मोटिव। तूने कभी किसी इंस्टाग्राम रील के आगे कमेंट किया कुछ फनी ताकि तेरे को लाइक्स मिले? सोचा नहीं, बस मैंने कमेंट कर दिया, मेरे को फील हुआ। जो मतलब दोस्ती यारी में कर देता है आदमी किसी दोस्त की, या फिर राइट लाइक कुछ बहुत अच्छा दिखता है तो वाओ बोल देता है एट बेस्ट। बट जो आदमी दूसरे को गिराने निकलता है, मैं मना नहीं कर रहा, वो फनी होते हैं, आई अग्री, राइट? लाइक ऑल ह्यूमर इज बेसिकली सम काइंड ऑफ बीइंग मीन टू समवन एल्स, राइट? लाइक एटलीस्ट द फनीएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर टू मी। बट द मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग दैट, क्या करता है तू रील्स अपने फ्रेंड ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता है और उसके नीचे खुद अपना कैप्शन डालता है। सोच वो चीज पब्लिक में लिखना और किसी को डिराइड और इंसल्ट करना, दैट रिक्वायर्स अ मोटिवेशन एंड यू हैव टू एक्नॉलेज वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम विद इन योर सेल्फ एज फार एज अदर्स। इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वांटिंग पीपल टू सी यू। सो वही जो तू कह रहा था ना, मैं चाहता हूँ मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और 1000 लोग मेरे को देखें, वो सेम सेंटिमेंट है। या किसी के पास वो इंस्टाग्राम कमेंट्स में है, किसी के पास वो सीईओज के सामने खड़े होकर बकर करने में है। वो सेंटिमेंट कॉमन। वाओ, बाप रे। I have not had a long conversation like this with anyone on podcast. Hey man, tell me, are you going to come on a date with me after this or what? अब जा रहे हैं बस। Have I successfully raised a 22-year-old You boy? have. It's 7:50 right now. 9 Damn, o'clock. Bro, let's advocate for bisexuality in this podcast. My time, your place. ए, मैं ऐसे करूंगा, देख तू घुसेगा ना ऐसे ऐसे और पीछे बैकग्राउंड आवाज आएगी, तेरे को पता नहीं होगा तू पिटने वाला है कि सेक्स करने वाला है। भाई ये जाएगा लाइव मेरे चैनल पे। तू बता तेरी ऑडियंस की क्या उम्र है? उम्र तो भाई 18 से भाई 25। अर्पित बाला ने ना सबको ब्रेन वॉश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डाल चलता है, मतलब हाँ, आप डाल अर्पित बाला की सकते वजह से अब दुनिया अलग है। हैं। अर्पित बाला, There was a pre-Arpit Bala world and a post-Arpit Bala world, and we live in a post-Arpit Bala world. ऐसा क्या किया अर्पित बाला ने? Arpit made. See, Arpit is the same genre of people as myself and Vinamra and Carrie. Or He's just out there. no, yeah. He's his own person. But जो हमारे दिमाग के intrusive thoughts है ना, उसने वो publicly डाल दिए हैं. Arpit is very unique, once in a generation talent in my view, as far as comedy is concerned, right? But he's Faridabad, he's DPS Faridabad. He's that same group. फरीदाबाद में क्या है ऐसा? भाई हमारे खाने में जहर है। फरीदाबाद में एफ्लुएंस है, एक्सेस नहीं है। लोगों के पास टेस्ट है बट टेस्ट खर्चने को जगह ही नहीं है, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो आदमी फिर इंटरनेट पे हिलाने लगता है कि इंटरनेट पे कुछ कर लो, समझ रहा है? और फिर वो हो जाता है। प्लस ब्रो कैरेक्टर देख तू यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, रजत दलाल पता है कौन है? तेरी ऑडियंस को पता होगा क्या कैरेक्टर आदमी है वो। रोज एक कोई लफड़ा कर देता है इंटरनेट पे, वो भी फरीदाबाद का, हमारे जिम का ही है। मतलब फरीदाबाद में सब क्रिएटर हैं, सब पर्सनैलिटी है, सब कोप कर रहे हैं और वो कोप पर्सनैलिटी है सब। There's everyone from Ankur Warikoo to a Carrie Minati. To Neeraj Arora and Ankur Warikoo, Neeraj Arora are sober people. Ah. Like, you know, not to include them in the same group as myself and Arpit. The wide spectrum. Yeah, it's a huge spectrum and everybody's interesting in Faridabad, bro. Vivek Bindra. Hey, off camera, but I actually met him recently. At my brother's wedding, surprisingly. I was about to meet him at an event. And then, you know... नहीं, and then it did not end up happening due to some logistical reason. Yeah. I'll meet him soon. सही podcast But he's also Faridabad. There's so many people in Faridabad, bro. It's an ongoing river of creators somehow. हर 2 साल में, like you would have thought विनम्र कोई टॉप नहीं करेगा, then अर्पित आ गया. I'm guaranteeing you 2 साल में अर्पित कोई टॉप कर देगा फरीदाबाद से. Like it is this generation that keeps giving somehow. Who would have thought, right? फाइट क्लब देखी आपने? हाँ, of course, bro. फाइट क्लब में कोट है एक कि we are the middle children of history. Yeah. No There are purpose or great- place. There are no great We wars for have us no to fight. great war, no great depression. Yep. Our great war is our spiritual war. Yep. Our great depression is our lives. Yep. How do you fight that war? How do you... So this is Chuck Palahniuk's most popular work. Yeah. If you know Chuck Palahniuk even a little more than Fight Club, you will realize he is de facto one of the most original writers of our time.
कि स्लैक स्टार फॉर्म जो है ना टेबल Listen to Chuck Palahniuk on Joe Rogan. I've done a stream actually where I was watching clips with people of Chuck Palahniuk. Bro, the stuff he tells you, it's just insane. Matlab, Fight Club is not even the beginning of it. And people love Fight Club for its reality. So, the quote, and we will redo the quote. He says, we are the middle children of history, right? There are no great wars and no great depression. Our great war is a spiritual war, and our great depression is our lives, right? You have to understand this in historical context. So, if you look at what is happening until from the beginning of 1700s, तू कितना भी पीछे चला जा, ठीक है? Like you can start at whichever point. Is there a preferred point to begin? Up to you. ठीक है. So